अनदर वीडियो ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन लिया था यूनिट वाइज। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 1 का जो ए पार्ट है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो यूनिट 1 का जो ए पार्ट है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर. So in that first we'll see the microprocessor, then microprocessor instruction set. Okay, so first we start with the basics of microprocessor and its instruction set. ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इनका हमें इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द ALU that is called as a arithmetic logical unit. So when we hear the word microprocessor, what comes to our mind is a small, that is micro means a small, and IC means integrated circuit. So that can process the data and that performs the arithmetical as well as logical operation, but this can be done by an ALU. ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर में ALU एक मेन ब्लॉक है, ठीक है, जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम डिटेल में देखते हैं कि ALU क्या होता है। So this unit is used to perform the arithmetic operation, like जो भी basic operation है arithmetic, addition, subtraction, multiplication and division are performed in this ALU. And second group is the logical operation like ANDing, ORing, XOR, XNOR, okay, NOT. तो ये सारे फंक्शन जो है वो लॉजिकल फंक्शंस है। ठीक है, तो ये सब भी यहाँ पे ALU में प्रोसेस होंगे। मीन्स इन शॉर्ट ALU विल परफॉर्म अरिथमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस, मीन्स दोनों ऑपरेशन इसमें प्रोसेस हो सकते हैं। एंड दिस ALU इज द मेन ब्लॉक इन द माइक्रो प्रोसेसर. सो हियर A and B आर द इनपुट ऑपरेंड्स while F is the output operand. So see in the figure. So here 4 inputs are given. Suppose A0, A1, A2, A3. It is a 4-bit data. Second data will be the B0, B1, B2, B3. Means suppose we have to add A plus B, and both A and B are the 4-bit data. So here A0, A1, A2, A3 is nothing but A, and B0, B1, B2, B3 means the B, and we have to add A plus B. So the summation result will be the output as a output, that is F0, F1, F2 and F3, and this S0, S1, S2 and S3 is the opcode which is written for instruction. Okay, so here S is the select line that selects the operation which is the opcode. So it is the ALU, arithmetic logical unit. Then next topic is we have to take some definition like opcode, operand, instruction, instruction set, program and a bus. ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशंस हमें आगे चल के लगेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज बाय ऑपकोड, ऑपरेंड, क्योंकि आगे चल के हमें इंस्ट्रक्शन सेट्स लेना है। ठीक है, ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ 8085, तो उसमें ऑपकोड, ऑपरेंड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट, तो ये सारे डेफिनेशंस यहाँ पे लगेंगे। सो दैट्स वाई ये डेफिनेशन हम यहीं पे स्टडी कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट डेफिनेशन है ऑपकोड। तो ऑपकोड क्या होता है? A binary code that indicates the operation to be performed is called as a opcode. ठीक है, तो opcode जो एक binary code है, binary means in 1 and 0 form, so that is a binary. We already study in the digital electronics. So that indicates the operation to be performed. ठीक है, so opcode denotes the operation that can be performed in the instruction, so it is called as a opcode. Suppose we have to take the instruction for addition, so we have to do the A plus B. So in that case we have to write the instruction add A comma B. So that is the instruction for addition. So this A double D add means a opcode. So that specifies the operation, means यहाँ पे हमें addition का operation perform करना है. So add is nothing but the opcode in the instruction. Second term will be the operand. So the data on which the operation to be performed is called as a operand. ठीक है, तो जिस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, so that can be called as a operand. So here A and B are the two
inputs and operation will be performed on that, and that operation will be a addition. So A and B is nothing but the operand in this case. So data on which the operation is to be performed, that is called as a operand. So इंस्ट्रक्शन में दो ही पार्ट होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी हम लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले रहेगा आपका ऑपकोड, ठीक है. जैसे अभी हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखा ऐड, एंड सेकंड जो पार्ट रहेगा वो ऑपरेंड रहेगा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ओके, सो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट देयर इज अ ऑपकोड एंड सेकंड वन इज द ऑपरेंड, ठीक है. तो ऑपरेंड जो है वो इंडिकेट्स करेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस इंस्ट्रक्शन में, एंड जिस पे एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि डेटा है वो रहेगा आपका ऑपरेंड. थर्ड डेफिनेशन इज द इंस्ट्रक्शन. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपकोड एंड ऑपरेंड दैट कैन बी यूज टू इंस्ट्रक्ट अ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ इंस्ट्रक्शन. तो जैसे अभी हमने यहाँ पे फॉर्मेट देखा इंस्ट्रक्शन का, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स ऑपकोड एंड ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन है, एंड दैट कैन बी यूज टू इंस्ट्रक्ट द system or the program. So that is called as a simply instruction. Fourth definition is the instruction set. So a list of all the instructions that can be used to system is called as the instruction sets of that system. So a list of all the instructions that can be issued to a system, that is called as the instruction set. मीन्स जितनी भी लिस्ट है इंस्ट्रक्शन सेट के, मीन्स अलग अलग टाइप है, जैसे अरिथमेटिकल, लॉजिकल, okay, so this type of instruction, so that can be issued to a system, that is called as the instruction set for that system. Fifth one is the program, subroutine and routine. A set of instruction written in a particular sequence so that to implement a given task, so that is called as a program. ठीक है, तो प्रोग्राम का सिंपल जो डेफिनेशन है वो इस तरह से अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो हम हर प्रोग्राम के लिए एक अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है. सो दैट कैन बी रिटन इन अ सीक्वेंस. तो प्रोग्राम हमेशा सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है वन बाय वन, मीन्स लाइन बाय लाइन, ठीक है. सो द इंस्ट्रक्शन विच इज़ रिटन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू इम्प्लीमेंट अ गिवन टास्क. तो ये प्रोग्राम रन होने के बाद सपोज हमें डिज़ायर्ड आउटपुट वहाँ पे मिलना चाहिए. सो दैट इज़ implementing a given task, so that is called as a simply program or subroutine. Next definition is the bus, a group of line or the pins or the signal that having common function is termed as a bus. तो बस एक ग्रुप ऑफ लाइन है, ठीक है, या उसे पिन भी कहा जा सकता है, दैट इज द पिंस, और द सिग्नल्स हैविंग कॉमन फंक्शन दैट इज टर्म एज अ सिंपली बस. तो माइक्रो प्रोसेसर में मेनली 3 बस है. फर्स्ट इज़ द डेटा बस टू कैरी द डेटा, ठीक है. तो डेटा बस में का काम वही है कि जो भी डेटा रहेगा मेमोरी से सीपीयू में या सीपीयू से मेमोरी में अगर सेव करना है तो ये डेटा आपका डेटा बस थ्रू ट्रैवल होगा, ठीक है. तो इसका हमें डिटेल स्टडी करना है आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है. सेकंड बस जो है वो एड्रेस बस है टू सिलेक्ट अ मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन. द एड्रेस बस हैज़ अ एड्रेस ऑफ द लोकेशन ऑफ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है. तो एड्रेस बस में जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी का जो भी एड्रेस होगा दैट इज़ पास थ्रू दिस एड्रेस बस. जिस तरह से डेटा बस में डेटा कैरी होता है, एड्रेस बस में एड्रेस कैरी होगा मेमोरी का या इनपुट आउटपुट. आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट, ओके. थर्ड इज़ द कंट्रोल बस, सो टू इशू एंड रिसीव द कंट्रोल सिग्नल, ठीक है. तो कंट्रोल बस में जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स वहाँ पे इशू या रिसीव होंगे, ओके. एंड दिस सिग्नल इज़ नथिंग बट द सिंपली अ क्लॉक पल्सेस इन द फॉर्म ऑफ क्लॉक पल्सेस. सो दैट इज़ द कंट्रोल बस. तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम में 3 बस होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस इज़ देयर. Then the next definition is what is meant by microprocessor. So the microprocessor is the combination of ALU and the control unit that can access the memory, ठीक है. तो माइक्रोप्रोसेसर वो जो कॉम्बिनेशन है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो हमने अभी यहाँ स्टडी किया है, एंड सेकंड जो है वो कंट्रोल यूनिट है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी यूज टू एक्सेस द मेमोरी. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली माइक्रोप्रोसेसर.
नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्ट्स, ठीक है। तो इंटरप्ट्स का हमें डिटेल स्टडी करना है लास्ट यूनिट में, ठीक है। सो व्हेन मेनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, वन और मोर देन वन IO डिवाइसेस में रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस एट एनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट है माइक्रोपेज बेस्ड सिस्टम से, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है। तो प्रिंटर, स्कैनर आउटपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, माउस आर द इनपुट डिवाइस, डिस्प्ले इज द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो एक से ज़्यादा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में। सो एट दैट टाइम वन और मोर डिवाइसेस दैट इज़ IO डिवाइसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट है तो कोई भी एक डिवाइस या एक से ज़्यादा डिवाइस अगर CPU को एक्सेस करने को वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। सो एट दैट टाइम द इंटरप्ट विल बी अ जनरेटेड, so the microprocessor stop the execution of current program and gives the service to the IO device, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है, तो वो उसे स्टॉप करेगा when the interrupt is generated by the input output devices and it will give the service to that input output device जो कि यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट करेगा। सो दिस फीचर इज कॉल्ड एज अ सिंपली इंटरप्ट। सो इंटरप्ट इज नथिंग बट द simply disturb, okay। So it is a external asynchronous input or the instruction that informs the microprocessor to complete the instruction that is currently executing and fetches a new routine in order to offer service to the input output device। So that is the simply interrupt। next हमें कुछ definition लेने related to the interrupt। so first definition is the interrupt, second is the interrupt service routine, that is in short called as the ISR, third is the vector non-vector interrupt, which are the types of interrupts, and the fourth one is also a type of interrupt, that is maskable and non-maskable interrupt। so first we start with the interrupt। so simple definition of interrupt is that it is a mechanism by which the input output devices in bracket that is a hardware interrupt or an instruction that is a software interrupt can be suspend the normal execution of processor and get itself service, ठीक है। तो इंटरप्ट एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के इंटरप्ट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। इसका डिटेल स्टडी हम 5th यूनिट में करेंगे। सो दैट कैन सस्पेंड द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसर एंड गेट इटसेल्फ सर्विस, ठीक है। तो जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम रन हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर को में, ठीक है, तो वो स्टॉप होगा एंड जिस डिवाइस ने यहाँ पे इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड किया है, ठीक है, तो उसको CPU का वहाँ पे सर्विस मिलेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली इंटरप्ट। सेकंड वन इज़ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, दैट इज़ ISR। इट इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम और रूटीन दैट व्हेन एग्जीक्यूट सर्विसेज द करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट सोर्स इज कॉल्ड एज अ ISR, ठीक है। तो ISR एक स्मॉल प्रोग्राम है और रूटीन है when executed the services the corresponding interrupt source, ठीक है। तो जब भी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करता है दैट इंटरप्ट विल बी फर्स्ट गिवन टू द ISR, दैट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है, एंड इट इज प्रोसेस थ्रू दैट ISR। थर्ड वन इज द वेक्टर नॉन वेक्टर इंटरप्ट व्हेन द ISR एड्रेस ऑफ इंटरप्ट is to be taken from the interrupting source itself, so it is called as a non vector interrupt, otherwise it is a vector interrupt, ठीक है। तो ISR में जो भी एड्रेस रहेगा इंटरप्ट का, सो दैट कैन बी टेकन फ्रॉम इंटरप्ट सोर्स इटसेल्फ, ठीक है। तो जो भी इंटरप्ट सोर्स या इंटरप्ट जनरेट कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, तो ISR का जो एड्रेस है दैट इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दैट इंटरप्ट सोर्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है, अदरवाइज it is a vector interrupt। Fourth definition is the maskable and non-maskable interrupt। so interrupt that can be masked means disable or unmasked means enable by the programmer, it is called as a maskable interrupt, ठीक है। तो जो भी interrupt है वो disable और enable हो सकता है by programmer, so that is called as a maskable interrupt, otherwise it is a non-maskable interrupt, okay। so these vector non-vector and maskable and non-maskable interrupt are the simply types of interrupt, okay। so these are the some definition which are related to the interrupt concept of a microprocessor। the next topic of syllabus is the computer languages from
large computer to a single chip microcontroller. So in that first we'll see the computer languages from large computer to the single chip microcontroller. So in that first we'll see the what is my computer language. So language written for a computer to understand is called as a computer language. ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखेंगे दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. एंड कंप्यूटर विल नो द मशीन लैंग्वेज, सो विच इज इन द बाइनरी फॉर्म. ओके, so that includes the languages like C, C++, Java, etc. That is the assembly language, and the machine language are called as a low level language that is written to understand directly by the processor. ठीक है, तो assembly language and machine level language जो है low level language है, and these C, C++, Java are the higher level languages. So that is the computer language. Then evolution of microprocessor from large one to the single chip microcontrollers. ठीक है, so with advance of semiconductor electronics, the larger computer were reduced into the size that is called as a personal computer. ठीक है, तो पहले जो कंप्यूटर आते थे उसका साइज जो था वो बिगर था या लार्जर था. ठीक है, तो जैसे जैसे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते गए, तो वैसे ही लार्ज कंप्यूटर का साइज जो है वो रिड्यूस हो गया कॉम्पैक्ट साइज में, like your personal computer or the laptop. So the processor early were so big that they were multiple people required to operate them. ठीक है, तो पहले जो कंप्यूटर सिस्टम आते थे 60s एंड 70s में, ठीक है, तो उसके लिए मल्टीपल पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट देम. सो दिस कंप्यूटर वेयर मेड बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब. ठीक है, तो उसमें जो मेन टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर यूज़ किया गया था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया गया था. ठीक है, एंड दिस वैक्यूम ट्यूब्स व्हेन रिप्लेस विद द सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो बाद में जिस तरह से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च होते गए वैसे ये वैक्यूम ट्यूब्स कन्वर्ट हो गए आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ठीक है, तो इनका यूज़ होने लगा. ठीक है, कंप्यूटर्स हार्डवेयर में. सो द साइज ऑफ कंप्यूटर इज ड्रास्टिकली रिड्यूस. सो विद द एडवांसमेंट इन द VLSI, सो VLSI एक टेक्नोलॉजी दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. So the processors become as small as the size of visiting card or less than it. ठीक है, तो VLSI टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम मल्टीपल जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ICs है, ठीक है, तो उनको हम कंबाइन करके मीन्स इंटीग्रेशन फॉर्म करके लार्ज स्केल में एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोसेसर विल गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो उसकी वजह से जो साइज़ है प्रोसेसर का दैट कैन बी लाइक अ विजिटिंग कार्ड और लेस देन the visiting card. Okay, so this advancement on VLSI will lead into the integrating of various components into the chip and thus it is called as a microcontroller. ठीक है, तो इसी तरह से VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको सिंगल चिप में यहाँ पे फैब्रिकेट किया गया है एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दैट माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर will be a faster. So that is the evolution of microprocessor. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड उसका ऑपरेशन डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.